sting operation done by Cobra Post in Gulal has exposed the bogey of love jihad. Several leaders from the BJP have been caught on camera incriminating themselves. I want to kickstart by showing you comments made by Suresh Rana. He's a MLA from the Shamli area of Western Uttar Pradesh. Rana is on camera admitting he fabricated rape charges against Muslim boys because they entered into a consensual relationship with Hindu girls. Remember, in the manner in which elements of the Sangh Parivar present it, it seems as if there is this huge conspiracy that's been hatched where money is being funneled, where an attempt is being made to woo Hindu girls. But now it turns out that several of these leaders know that this is bogus. They know that these relationships are consensual, yet because it suits their politics, they claim that there is something called love jihad. That claim is falling apart. Here is a Cobra Post investigation. You're familiar with the phrase love jihad. You've heard of how in Western Uttar Pradesh, members of BJP and RSS have been openly raking up the bogey of love jihad, claiming Muslim men have been seducing Hindu girls and marrying them. It's a claim denied by the government and the BJP. लव जिहाद की आजकल बहुत चर्चा है। आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी समस्या है देश में, या इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? आपको क्या लगता है क्या? पहले मुझे इसकी डेफिनेशन समझना पड़े। But now a Cobra Post Gulal investigation has busted the love jihad bogey, exposing how leaders from BJP, RSS and VHP use violence, blackmail and false cases to split Hindu-Muslim couples. Suresh Rana, the BJP MLA from Thana Bhavan in Uttar Pradesh, boasts openly about fabricating rape charges against 3 Muslim boys who had gone out with a Hindu girl one evening. अभी मैं इसकी सच्चाई बताऊं तो रेप के जबरदस्ती तो लगवा दिया, था थोड़े ही भाई, था तो सहमति से। वो तो हमने उनका इलाज करने के लिए रेप केस उनके खिलाफ करा दिया। लड़की भी आज उनके खिलाफ बयान दे रही, परिवार के खिलाफ दे रहा। पर यदि इसकी डेप्थ में जाओ, गहराई में जाओ, तो लड़की गई तो बना की थी, वरना 3 लोग उठा के थोड़े लेंगे। He even claims that in most cases, girls are forced into testifying against the boy. तो में से एक ऐसी भी है, एक पानीपत करनाल का केस हुआ था, बड़ा हैकर के जलालाबाद का तो लड़का था उसमें, और पानीपत की लड़की थी पंजाबी। अच्छा। हमारे पास में नगर पंचायत वो लिया उसे भगा के, यहाँ रहता था थाना भवन एक मकान में। वो केस होगा लगभग 2004 का। अच्छा। तो मुझे पता लगा, क्योंकि पता कैसे लगा, लड़की बड़ी मॉडर्न थी और वो शाम को आइसक्रीम खाने आते थे, दोनों पति पत्नी चौराहे पे। तो हमारे लोग कान खड़े हुए कि इतनी सुंदर लड़की ये जो है एक मुसलमान के लड़के के साथ आ रही है, ये दिखने में लुकिंग जो है इसकी हिंदू की है। तो उन्होंने मुझे आके बताया धीरे धीरे। मैंने पुलिस को कहा, 4 दिन तक पुलिस बात करती रही, घर का पता लग गया। पुलिस की हिम्मत ना बढ़े उस घर में घुसने की, मोहन करता। अब मोहल्ले में मुसलमानों के, तो जब 4 दिन हमने इंतजार देख लिया, पुलिस नहीं हुई, तो हमने कहा पुलिस से, फिर हम जा रहे हैं। तो हम घुस के जाके उसमें। अच्छा। 2004 की बात होगी। ओके। तो उस समय खाना खा रहे थे, बैठे टाइम था जो पकड़ ली जाके, हमारे 2 चाटे से पकड़ लिए बाहर। तो उन्होंने हल्ला गुल्ला सभी करा, तो 2-4 उनके मारे। तो जब आदमी कमजोर होना तो जल्दी डर के भी आई थाने में। बेहतर से सुंदर लड़की, और वो अनपढ़ मुसलमान, तो पढ़ाई का काम करता था वो, पढ़ाई। Sanjay Agarwal, who contested the Muzaffarnagar municipal elections on a BJP ticket, gives a first-hand account of how couples are busted. बहुत सारे स्वयंसेवक जी। एक लड़की ने रजिस्ट्रेशन कराया सिटी मजिस्ट्रेट के ICM गया शादी के लिए, डेट लगी। हमारे लोग निगाह रखते हैं, ध्यान रखते हैं।
वो देखते हैं कि वकील कौन है उनका, लड़की वकील के चैम्बर में लड़की बैठी है, तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे, हम पूरी टीम लेकर वहाँ पहुँचते हैं। 50-60 लोगों की, 70 लोगों की। Muzaffarnagar riot accused Sangeet Som even explains how Hindu girls are brainwashed against marrying Muslim boys. यही समझाया जाता है बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मुस्लिम लोगों में ये तो है नहीं कि एक से शादी कर ली तो, अब जैसे हिंदू ने एक से शादी कर लिया, वो दूसरी शादी करेगा तो वो तो ऑटोमेटिक जेल चला जाएगा। ये हिंदुस्तान में 2 कानून चल रहे हैं ना कि मुस्लिम तो 4 से कर ले, हैं? तो उसे फिर बताया जाता है बेटा ये जरूरी थोड़ी है कि आज तेरे साथ शादी कराए, कल तो दूसरी के साथ भी करेगा। ये मुस्लिम है तो ये 4 तक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे इमोशनली समझा जाता है कि तेरी माँ मर जाएगी, तेरा बाप मर जाएगा, तेरा भाई मर जाएगा, तेरा भाई जाके सुसाइड कर लेगा, वो समाज में बैठने लायक नहीं रहा। उसे इस तरीके की जब इमोशनली उसे समझाया जाता है तो समझ में आ जाता है। The love jihad claim, however, is busted by one of the alleged victim, who claims she married a Muslim man out of her own free will. ये लव जिहाद वाला जो मैटर था, जी जी जी, देखो शादी कोई भी इंसान किसी से भी कर सकता है। जी जी हाँ जी, ठीक है। तो मैंने शादी डॉक्टर साहब से अपनी मर्जी से की थी। जी हाँ, मैं उनके साथ अपनी मर्जी से रह रही थी। Bureau Report, India Today. वहाँ से पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है। You just saw one of the victims of this so-called love jihad coming on tape to say she married that gentleman of her own accord. It was completely consensual. In the previous clip, we had Suresh Rana, a BJP sitting MLA, saying he knows that relationships are consensual and yet they forced the girl to file rape charges so that the marriage can be broken. Just a short while before we started the newsroom, I spoke to Suresh Rana to find out what he had to say about being caught on camera admitting that he fabricated rape cases against Muslim boys. सर नमस्ते, मैं राहुल कंवल बोल रहा हूँ। मैं इंडिया टुडे का मैनेजिंग एडिटर हूँ, आज तक के साथ काम करता हूँ। क्या हाल चाल है आपके? मैं जानता हूँ भैया, आपको कौन नहीं जानता, बहुत अच्छे हाल है मेरे। अच्छा, अगर 1-8 मिनट की आपकी इजाजत हो तो हम आपसे 1-2 सवाल करना चाहते थे सर। मैं निकलता हूँ सुरेश राणा जी के पास। राणा जी, ये एक स्टिंग ऑपरेशन आया है, ऑपरेशन जूलियट, जिसमें आप कैमरे पे वो कहते हैं कि आपने रेप चार्जेस फैब्रिकेट किए कुछ मुस्लिम बॉयज के ऊपर। क्या मामला था सर, क्या कहना है आपका इस पर? मेरा ये विषय, पहली बात तो ये नहीं है, मुझे संज्ञान में नहीं है कौन सा विषय जी। और जहाँ तक ये है कि मुस्लिम बॉयज के ऊपर एक घटना जहाँ तक मुझे याद आती है, उसमें लड़की भी मुस्लिम है, लड़की मुस्लिम है, लड़की नाबालिग है और नाबालिग लड़की के साथ घटना हुई थी। और हम लोगों के पास जो पीड़िता का बयान है, हम पीड़िता के बयान के हिसाब से पीड़िता जो कहती है उस आधार पर बहनों के सम्मान के लिए उनकी सिफारिश करते हैं। कोई भी विषय ऐसा आएगा तो जो पीड़िता का बयान होगा उस आधार पर हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। सर इसमें तो आपका बयान है, ये कहते हैं कि ये इनकी मर्जी से हो रहा था, इसमें जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन एक सबक सिखाने के लिए हमने रेप का केस रजिस्टर कर दिया। लड़की से हमने बयान निकलवा लिया, फैमिली से भी हमने बयान निकलवा लिया, लेकिन अगर आप इस मामले की तह में जाओ तो लड़की अपनी मर्जी से गई थी। ऐसा नहीं कि उन 3 लड़कों ने उसे अबडक्ट कर लिया। तो ये तो आप खुद कह रहे हो सर। मेरी जानकारी में ऐसा कोई बयान नहीं है, मुझे संज्ञान नहीं है ऐसे किसी बयान का राहुल भाई। पर ये तो कैमरे पे है सर, ये पूरा देश इस वक्त देख रहा है, कैमरे पे बयान है ये तो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास यदि कोई बहन आएगी और किसी बहन के साथ कोई छेड़छाड़ होगी, दुराचार होगा, तो हमें उस लड़की के बयान के अनुसार उसके साथ खड़ा हुआ मैं। और जो पीड़िता है, पीड़िता के साथ लड़ाई लड़ना मेरा नैतिक कर्तव्य है। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का माहौल हो कि नाबालिग लड़कियों के साथ, इस प्रकार लड़कियों के साथ किसी की हिम्मत ना हो कि कोई बदतमीजी करे, कोई दुराचार करे। इसलिए दुराचारी को जितनी कठोर से कठोर सजा मिल सकती है उसका हम लोग प्रयास करते हैं। सर इसी स्टिंग में एक लड़की और है
जो कह रही है कि मैं तो डॉक्टर साहिब से, मतलब उनका मुस्लिम पति था, मैंने तो डॉक्टर साहिब से अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन बाद पे मुझ पे प्रेशर पड़ा तो मुझे दिखाना पड़ा कि मैंने मर्जी से नहीं की, लव जिहाद का केस बन गया काजल का। वो तो कहती हैं कि वो तो अपनी मर्जी से शादी की उन्होंने। वो उस केस का उन्हें मालूम होगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है कौन सा केस है, कौन से केस की बात वो कह रही हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर ये टेप सही निकलता है और आप वाकई में कैमरे पे हो, वो कहते हो जो आप अभी कह रहे हो कि आपने नहीं कहा, लेकिन अगर ये निकलता है कि वाकई में आप हो कैमरे पे और आप ये कह रहे हो कि हमने रेप के ये फेक केसेस दर्ज करवाए, लड़की को खर्चा डला, फिर क्या होगा सर? आप जरा, मैं आपको अपना विषय समझा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कह रहा हूँ कि चूंकि सामाजिक दृष्टिकोण में बहुत सारे लोग आते हैं, हमारी प्राथमिकता रहती है यदि कोई लड़की पीड़ित है, उस पीड़ित के बयान के आधार पर, यदि पीड़ित कहती है मेरे साथ दुराचार हुआ है तो मैं दुराचार की बात करूंगा, पीड़ित कहती है छेड़छाड़ हुई है तो मैं छेड़छाड़ की बात करूंगा। जो पीड़िता का बयान होगा, पीड़िता के बयान के अनुसार हम कोशिश करते हैं कि जितनी मदद अपनी बहन की हो सके वो मदद करने का प्रयास करते हैं। फिर आप बता रहे हैं केस है पानीपत करनाल का, जहाँ पे जलालाबाद का लड़का था, पंजाबी लड़की थी पानीपत से, आपने बोला कि एक दूसरे से मिल रहे थे, हम इनके घर में घुसे, 2 थप्पड़ हमने मारे, वहां पे खूब तमाशा हमने किया, हम इनको पुलिस स्टेशन लेके गए, लड़की बड़ी खूबसूरत थी, लड़का इलिटरेट था, एम्ब्रॉयडरी का काम किया करता था। इस तरीके से कानून को तोड़ना, आप एक विधायक हैं, आपका कानून को तोड़ना, पिटाई करना, क्या ये ठीक है सर? भैया जी, ऐसा कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने कभी कानून को तोड़ने में विश्वास नहीं रखा। हमें हमेशा कानून का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का यही तकाजा भी है, हमेशा हम लोग कानून के सहयोगी। नहीं तो ये जो बयान है आपके नाम से चल रहा है, आपकी शक्ल है, आपकी आवाज है, फिर उस पर क्या कहना है सर? निश्चित रूप से मैं कभी जीवन में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि मेरे द्वारा कानून को तोड़ा गया हो। और अगर ये टेप सही निकलता है फिर क्या आप अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्या अपना एमएलए पद छोड़ेंगे आप? मैं जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया। चलिए, आप जुड़े हमारे साथ। राव जी, आपने बात रखी, इसके लिए शुक्रिया सर। ये तो हो गया, लेकिन ये है क्या मामला असल में? बहुत धन्यवाद। I want to go across now to Anirudh Behel. He's the editor of Cobra Post. He's led the team of journalists who've put this investigation together. Anirudh, Operation Juliet exposes the bogey of love jihad. It comes at a time when, in any case, we're seeing a lot of back and forth and beef politics. Now, this is one issue that's been used to raise communal tempers, especially and most recently in Western Uttar Pradesh. It seems from several of the clips that I saw through the day today that the claims of love jihad are grossly exaggerated, and in several of these instances, netas know that the love was voluntary and yet they project it as jihad. Yeah, what the Cobra Post Gulel investigation found was that there are several instances of the right-wing leaders, which includes BJP, RSS and several other of these so-called fringe groups, that they don't like inter-religious marriages between Hindu girls and Muslim boys, or any kind of partnership for that matter, and they go and try and convince the girl to leave the boy first, and if the girl doesn't agree, then they intimidate, blackmail the whole family, then they put fabricated charges against the Muslim youth. In fact, several Muslim youth are incarcerated because of this, and they even go so far as to sedate the girl, put her into intensive counseling centers. So it's a normal standard operating procedure. It is not an aberration. It is a very, very cynically driven, organized strategy to polarize the voter. Singh actually is claims to the counter, where we've seen several of these Hindu groups claim that love jihad is a orchestrated campaign that's funded by Saudi mosques. We've also seen the Kerala High Court, the Karnataka High Court write about it. So it's not only the fringe, but it's also got some sanction from governments in Kerala, from courts in Kerala and in Karnataka. So there is some official sanction also to the idea of love jihad. No, sorry, we didn't find any instance at all of this so-called organized strategy
by the minorities or the Muslim community, so to speak, to woo Hindu girls. I mean, obviously they would be, I mean, they are youth after all, and it's all consensual. And if that is consensual, then nobody has any business going and putting, and in fact, it is not even about love jihad actually. It also shows their attitude towards Hindu women in particular, women in general. It shows their patriarchal attitude. I mean, what is this attitude that you can't sort of socially mingle with some people? You have to behave in a particular way. You have to dress in a particular way. I mean, it shows, it goes beyond their attitude towards this sort of fear of Muslim youth, so to speak. It goes into how to control Hindu women as well. So it is not just, it is a gender issue, it is a patriarchal issue, and more than, I mean, love jihad is just the phraseology that they are using now. So we've got a claim, we've got a counter claim, and then we've got the sting operation that you've put out where these netas are on camera admitting in one instance that fake rape cases were leveled against certain Muslim boys. How do you believe it needs to be approached? Because there's a political dimension to it, there's a social dimension to it, and most importantly, there is a law and order dimension to this. What needs to be done is that, especially the of a national political party, I mean, the office bearers of those of a national political party have to basically have, they have sworn allegiance to the Indian Constitution, so they can't go about, I mean, earlier we used to say there are these fringe groups making these comments, so let us ignore it. Here it is the BJP leaders who are doing it. It's not fringe anymore. You know, so what is this, I mean, how can you then differentiate between, I mean, here this Minister of State, Mr. Sanjeev Balyan, is going on about how Muslim youth come and change their names to Sonu and Monu, and they wear kalevas, and they do this, and they come on motorbikes. I mean, this sort of fantastic sort of imagination that they use. And in fact, over the last several years, if you notice, the right-wing strategy has revolved around two things. One is Gaur Suraksha, and the other is this whole love jihad thing, which they feel will pay them big dividends. So I think both of them attack the very fabric of the Indian Constitution in many ways. I'm going to leave it over there. Anirudh Behel for joining me on the newsroom. Thank you very much. Clearly, this investigation raising some very serious questions about the claims that have been made by our politicians. I want to play out just two very critical bites because there's many hours of footage, and sometimes when there's too much information, the meat can be lost. But I want to play out a comment made by Suresh Rana. He's a sitting BJP MLA from the Shamli area of Western Uttar Pradesh. Just listen to what he says about fabricating cases in an instance which he knew was purely consensual. This is the MLA exposing the bogey of love jihad in his own words. इसकी सच्चाई बताइए। तो रेप के जबरदस्ती तो लगवा दिया, रेप था थोड़े ही। भाई था तो सहमति से। वो तो हमने उनका इलाज करने के लिए रेप केस उनके खिलाफ करा दिया। लड़की भी आज उनके खिलाफ बयान दे रही, परिवार के खिलाफ दे रहा। पर यदि इसकी डेप्थ में जाओ, गहराई में जाओ, तो लड़की कहीं तो बना दी थी, वरना तीन लोग उठा के थोड़े ले गए। That was Suresh Rana. Now listen to a girl by the name of Kajal. She filed rape cases. Now I've been able to pull out the FIR number. So FIR number 354/14, sections are 376, 377, 323 and 295, where she alleges that her husband raped her, that she was forcibly put into a situation where she was married off to a boy. Now she comes on tape to tell Cobra Post that this marriage was actually consensual. Listen to Kajal herself. ये लव जिहाद वाला जो मैटर था, जी जी जी, देखो शादी कोई भी इंसान किसी से भी कर सकता है। जी जी हाँ जी, ठीक है। तो मैंने शादी डॉक्टर साहब से अपनी मर्जी से की थी। जी हाँ, मैं उनके साथ अपनी मर्जी से रह रही थी। I want to go across now to Sanjeev Balyan. He's one of the leaders who's been stung by Cobra Post. He's Minister of State for Agriculture in the Modi government. He's joining us from Krishi Bhavan. Thank you very much, Mr. Balyan. स्वागत है आपका न्यूज़ रूम में। ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। सबसे पहले तो मैं सुरेश राणा की बात आपके सामने रखता हूं। उनको कैमरे पे कैद किया गया है ये कहते हुए कि 3 मुस्लिम लड़कों के खिलाफ झूठे रेप के केस दर्ज किए गए क्योंकि वो एक हिंदू लड़की के साथ शादी कर चुके थे, एक लड़का उनकी शादी हो गई थी। अब ये बताइए कि ये नेता खुद कैमरे पे ये कह रहा है कि उसने झूठे रेप केस दर्ज किए। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? मुझे नहीं पता है जूलियट जी कौन है,
मेरे बारे में भी इन्होंने कल कहा, तो जो जैकेट में पहने हुआ था वो 2 साल पहले पहनता था, तो इसका मतलब ये है कि 2 साल पहले इन्होंने मेरे पास आए थे और आज दिखा रहे हैं। तो इस बारे में क्या कह सकते हैं 2 साल पुराने, अगर ये कोई बात दिखा रहे हैं? नहीं सर, आप कह रहे हैं कि 2 साल पुराने, अब ये 2 साल पुराना हो, 1 साल पुराना हो, 2 महीने पुराना हो, 1 महीने पुराना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि बीजेपी के लीडर्स टेप पर कह क्या रहे हैं। सवाल तो सबसे बड़ा ये है ना, आपको नहीं लगता कि इस पूरे टेप की स्टडी होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए और पता करना चाहिए अगर वाकई में लीडर्स ने वो बातें बोली हैं जो कि कहा जा रहा है कि उन्होंने कही है, जो दिख रही हैं कहीं, ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं सर। ने टेप्स के स्टडी के साथ साथ एक बात और देखनी है कि मुजफ्फरनगर दंगों में बलात्कार के झूठे मुकदमे दर्ज में 2 साल से लोग जेलों में बंद है। अगर हो तो सब चीज़ों की जांच हो। अगर आप रेप का कानून आज देखेंगे तो इतना कुछ कमियां उसमें रही हैं, उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता मुझे तो महसूस होती है कम से कम। नहीं सर, अब तहकीकात तो अच्छे से होनी चाहिए, दोनों तरफ की तहकीकात होनी चाहिए, ये बात तो आपकी एकदम 100% सही है। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ इस कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन की, जिसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कई सारे लीडर्स कैमरे पे हैं। उनमें से एक तो ये कह रहा है कि हमने जानते हुए फेक रेप केसेस लड़कों के खिलाफ दर्ज किए क्योंकि वो शादी कर चुके थे हिंदू लड़की से और हम इसके खिलाफ थे। अब ये लीडर खुद कैमरे पे है ये कहते हुए, सर इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, आप समझते हैं, जो ये बहुत दिनों से चल रहा है, इंटर रिलीजन मैरिज का मामला, और इसमें ज़्यादातर नाबालिग लड़कियां होती है। अगर आप देखेंगे, अगर कोई नाबालिग लड़की है तो अगर उसके साथ कुछ ऐसा है तो रेप अपने आप हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कोई लड़कियां नाबालिग थी या बालिग थी। सर बालिग नाबालिग तो का इम्पैक्ट नहीं है, सवाल यह है कि अगर ये फेक केस है, ये जानते हुए कि ये फेक केस है, तो ये गलत है। कुल मिला के तहकीकात दिखाती है कि जो लव जिहाद की बातें हो रही थी उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा नजर आ रही है, हकीकत कम नजर आ रही है। देखिए, लव जिहाद का मामला काफ़ी चर्चाओं में आया। मैं इस पर ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरह के अजीब अजीब इंस्टांसेस आए हैं उत्तर प्रदेश में जो इसके बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, और अगर इसके बारे में तो वही बता पाएंगे सुरेश जी कि उन्होंने बात कही थी या नहीं कही थी। सर, इस स्टिंग ऑपरेशन में आप भी हैं, आपसे पूछा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हम नहीं रेकमेंड करते कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, कंप्लेंट रजिस्टर कराता है तो कमज़ोर हो जाता है। हम तो खुद चीज़ों को जाके रिजॉल्व करते हैं, मतलब कानून के परे आप जाके चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कमज़ोर कर देता है। अब बताइए, आप एक लीडर हैं, अपने इलाके के बड़े लीडर हैं, इस तरह की बातें करना कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जाना चाहिए, खुद चीज़ों को हाथ में लेके इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या इस तरह की चीज़ें कहना ठीक है सर? जिस स्टिंग की आप बात कर रहे हैं उस समय मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं था, उस समय मैं आम कार्यकर्ता था, और अगर मैंने ऐसी बात कही है तो ये बात इस बात के लिए कही होगी कि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था हमारी बात। अगर हमारी बात सुनी जाती तो हमें वो करना पड़ता जो हुआ। सर, ये कमाल की आप बात कर रहे हैं कि आप उस वक्त एमपी नहीं थे। आप एमपी थे या नहीं थे इसका क्या लेना देना, उस वक्त भी आप मुजफ्फरनगर में बीजेपी के नेता थे, आज भी हैं, उस वक्त भी थे। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, एडमिनिस्ट्रेशन के पास मत जाओ, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश मत करो, खुद चीज़ों का समाधान खोजो, खुद हम चीज़ों को खुद करेंगे, इस तरह की बात जो कानून के परे है, क्या किसी नेता के लिए कहना ठीक है? फर्ज छोड़िए कि इस बात को कि वो एमपी था कि नहीं था उस टाइम पे। नहीं, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के पास ना जाने की बात इसलिए कही थी कि 6250 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे मुजफ्फरनगर दंगे में। वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दर्ज किए हुए मुकदमे थे, और हमने बहुत विनती की पहले जाकर शुरू में कि इतने मुकदमे ना दर्ज किए जाएं, इतने निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए। उसके बावजूद हमारी बात नहीं सुनेगी। आज भी मुजफ्फरनगर जेल निर्दोष लोगों से भरी पड़ी है जो मुजफ्फरनगर दंगों में है, आज भी निर्दोष लोग हैं बहुत से। तो उस वक्त ये बात कही गई होगी। सर, ये आपने बातें कही, मैं अपनी तरफ से जज नहीं करना चाहता आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप एमपी नहीं थे, और हाँ, आप मान भी रहे हैं कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास न जाने की बात कही है, ये एकदम गलत है। सीधे तौर पे किसी नेता का इस तरह की बात कहना गलत है। बहरहाल पार्टी अब तक इस पे खामोश है। सुरेश राणा ने जो कहा, आपने जो कहा, संगीत सोम ने जो कहा, इस पे पार्टी ने अब तक कुछ नहीं कहा। देखना ये होगा कि पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल बालियान जी आप जुड़े हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच।